बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को। देर आर नंबर ऑफ फील्ड्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, बट इन टूडेज वीडियो वी विल जस्ट फोकस ऑन मोस्ट कॉमन और फेमस ब्रांचेस दैट आर सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। जनरली अगर हम बात करें तो रफली साइकोलॉजी को डिवाइड किया जाता है इन टू मेजर एरियाज. फर्स्ट वन इज नोन एज रिसर्च एंड सेकंड वन इज नोन एज practice. Research is the area which seeks to increase our knowledge. वो एरिया जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं. एंड प्रैक्टिस एज द नेम इंडिकेटेड, इट इज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट obtained knowledge in solution of problems that are part of our real life setting. जो हम नॉलेज ऑब्टेन करते हैं, जो अब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं थ्रू रिसर्च, द यूज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, दैट स्पेसिफिक नॉलेज, ऑब्टेन नॉलेज इन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रियल लाइफ सेटिंग्स. प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट करना, उस नॉलेज को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस कहलाता है. Now there are different subfields and we will discuss these common fields one by one. First field of psychology is abnormal psychology. It is mostly focused on abnormal behavior or psychopathology. Now the word abnormal is composed of two different words, ab and normal. Ab means away. This word ab means away. Normal means anything that is acceptable by the society. So it means that abnormal is any behavior that deviates the normality, that is against the normal behavior. So in order to define the abnormal behavior, we must know what is socially acceptable behavior, what is the normal behavior in any given society. So it means that any behavior that is performed by majority of individuals and that is socially acceptable for that specific surrounding is considered as the normal behavior. And the task of the psychologist and professionals who are dealing with abnormal psychology, who are providing services in the field of abnormal psychology, their task is to identify, to diagnose, to assess, and to provide the treatment strategies for psychological problems such as depression and anxiety. वो issues जो हमारे mind से related होते हैं, mental problems को diagnose करना और उनके लिए solution provide करना psychologist का काम होता है, जो कि abnormal psychology के field में काम कर रहे होते हैं. यहाँ पे psychotherapist काम कर सकते हैं, counselors काम करते हैं और clinical psychologist भी इस field का part होते हैं. Second field of psychology is biopsychology. It is based on the functions of neuron, nervous system and brain parts, and how these neurons and nervous system or brain parts affects our thinking, how these affects our feelings and emotion, and how these affects our behavior. किस तरह से न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम रोल प्ले करता है हमारे थिंकिंग में, हमारी फीलिंग में या हमारे एक्शंस में. दिस ब्रांच इज आल्सो नोन एज न्यूरोसाइकोलॉजी, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, physiological psychology or psychobiology. These are different names for the same field. And professionals who perform duties in the field of biopsychology, they usually study how the diseases of brain and how the injuries related to brain impact the behaviors of human beings. किस तरह से ब्रेन इंजरी, अगर आपका कोई ब्रेन पार्ट डैमेज हो जाता है इंडिविजुअल का, किसी भी ब्रेन इंजरी की वजह से या ब्रेन डिजीज़ की वजह से हमारे जो बिहेवियर है, ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर थिंकिंग, इन आवर फीलिंग्स एंड इन आवर एक्शंस. Third field of psychology is clinical psychology, and it is mainly focused on measurement and treatment of abnormal behavior, mental illness as well as the psychological disorders. Clinical psychologist mostly जो है वो severe mental problems के साथ डील कर रहे होते हैं. ये इनका जो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, ये प्राइवेट सेटिंग्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स में. इसके अलावा कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सच एज इन यूनिवर्सिटीज़ एंड इन कॉलेजेस दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़.
कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम करते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स हैं जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं एज अ टीम मेंबर के तौर पे काम कर रहे होते हैं टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज। पॉसिबली ये टीम जो होती है इसमें साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, इसमें फिजिशियंस हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हो सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और ये मिल के एज अ टीम काम कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज, इन ऑर्डर टू डायग्नोज दी severe mental problems and to provide and to suggest the treatment plan. Psychotherapies provide की जाती हैं, different psychotherapeutic techniques according on the basis of nature of problem psychotherapies apply की जाती हैं। और अगर psychiatrist as a team काम कर रहे हैं, ये clinical psychologist और इनके साथ psychiatrist भी हैं, तो psychiatrist जो है वो medicine भी prescription कर लेते हैं, prescribe कर देते हैं for severe mental disorders। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो डील कर रहे होते हैं सिवियर मेंटल प्रॉब्लम्स के डायग्नोसिस में और एज वेल एज उनकी ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट करने में। फोर्थ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज नॉन एज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव का जो मेन फोकस होता है वो हिडन मेंटल प्रोसेसेस, इंटरनल मेंटल स्टेट्स पे होता है। 1960s में ये फील्ड स्टार्ट हुआ था एंड कंटिन्यूसली इट इज़ अ ग्रोइंग फील्ड करंटली। बेसिक एम क्या होता है? टू नो हाउ पीपल लर्न, हाउ पीपल थिंक एंड हाउ दे रिमेंबर द थिंग्स एज वेल एज द इवेंट्स। उनकी लर्निंग कैसे होती है, थिंकिंग कैसे होती है, मेमोरी कैसे फॉर्म होती है। मेन फोकस इज टू स्टडी द मेंटल प्रोसेसेस। अब ये मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारी थिंकिंग हो गई, हमारी परसेप्शन हो गई, हमारी अटेंशन हो गई, लर्निंग, मोटिवेशन, मेमोरी, इमोशंस, फीलिंग्स, लैंग्वेज, then decision making and problem solving abilities. All of these are our mental processes. So the role of cognitive psychologist is to study these mental processes and as well as their influence on people behavior. इनका क्या impact पड़ता है हमारे behavior पे? Cognitive psychologists describe how our mind works, concluding that our brain stores and then process information just like a computer. So it means that cognitive psychologists mainly focused on influence of cognitive processes or mental processes on our behavior. Fifth field of psychology is known as counseling psychology. It is considered as one of the major field of psychology, mostly focused on providing the counseling to the clients who are experiencing any type of psychological distress. हर वो इंडिविजुअल जो किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस फील कर रहा है, जो प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और वो काउंसलर की हेल्प उसको चाहिए होती है, तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उसको डील कर रहा होता है। और बहुत कॉमन मेजर फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फील्ड है काउंसलिंग साइकोलॉजी। मोस्टली ये डील करते हैं माइनर इश्यूज़ के साथ। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट वो माइनर इश्यूज़ जो कि डिस्टर्ब कर देते हैं हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग को, हमारी डेली रूटीन को, डेली लाइफ की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर देती है हमारे माइनर इश्यूज़। तो उन माइनर इश्यूज़ के लिए जब हमें हेल्प रिक्वायर्ड होती है तो हम काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से वो हेल्प ले सकते हैं। द पर्पज़ इज़ टू इम्प्रूव द सोशल एंड इमोशनल वेलबींग एंड टू हेल्प द इंडिविजुअल्स हु आर facing these problems to adapt the healthy coping strategies. कोपिंग स्ट्रेटजीज को लर्न करने में, हेल्दी कोपिंग को लर्न करने में लोगों को हेल्प, क्लाइंट्स की हेल्प प्रोवाइड करना in order to deal effectively with their daily life stressors so that they can deal positively and effectively with their life stressors. उन minor issues को वो deal कर सकें, उनके साथ positively cope कर सकें जो उनको daily life की functioning में, normal functioning में disturbance create कर रहे हैं. Counseling can be provided for various issues. फॉर एग्जाम्पल फैमिली काउंसलिंग हो सकती है, मैरिज काउंसलिंग हो सकती है, कैरियर काउंसलिंग हो सकती है। इस तरह बहुत से टाइप्स हैं, बहुत से फील्ड्स हैं आगे काउंसलिंग साइकोलॉजी में। इसीलिए इसको बहुत ब्रॉड फील्ड कंसिडर किया जाता है क्योंकि एक नॉर्मल लेवल पे माइनर इश्यूज़ के साथ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डील कर रहा होता है। नेक्स्ट फील्ड है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एज दी नेम इंडिकेटेड, ये ब्रांच जो है ये साइकोलॉजी की ये फोकस करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स थ्रू आउट देयर होल लाइफ स्पेन। ठीक है, ये साइंटिफिक स्टडी है दैट सीक्स टू एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ पीपल चेंज
ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, अपने लाइफ में किस तरह से चेंज होते हैं। बेसिकली डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट फिजिकल ग्रोथ पे फोकस कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे होते हैं, इसी तरह इमोशनल चेंजेस पे, परसेप्चुअल चेंजेस पे फोकस कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ सोशल ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे होते हैं। कोई इंप्रूवमेंट आई हमारे सोशल इंटरेक्शन में एज द एज इंक्रीजेस, ओवर द लाइफ स्पेन हमारा सोशल इंटरेक्शन कैसा है, हमारी परसेप्शंस कैसी हैं, हमारा इमोशनल कंट्रोल कितना है, हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी हो रही है, और हमारी फिजिकल ग्रोथ कैसी हो रही है। दिस इज द फोकस ऑफ field of developmental psychology. These psychologists study all of these growth, all of these developments, ये एस्पेक्ट्स को, इन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस, विद रेफरेंस टू डेवलपमेंटल स्टेजेस, कि फिजिकल ग्रोथ, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल या परसेप्चुअल डेवलपमेंट दैट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, सिमिलरली इन एडोलेसेंट स्टेज और ओल्ड एज। तो जो रिक्वायरमेंट है हर डेवलपमेंटल स्टेज की, क्या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू डिमांड, नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ दैट डेवलपमेंटल स्टेज, क्या हमारी इमोशंस, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, हमारी फिजिकल ग्रोथ, हमारी मेंटल ग्रोथ वो प्रॉपर चल रही है, सोशल इंटरेक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर प्रॉपर नहीं हो रहा, अगर कोई डेवलपमेंटल डिले आ रहा है, हाउ दीज डेवलपमेंटल डिलेज इफेक्ट्स अवर बिहेवियर, इस चीज़ को भी स्टडी करना, डेवलपमेंटल डिलेज के इफ़ेक्ट्स हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे बिहेवियर पे क्या पड़ सकते हैं, इसको स्टडी करना भी डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है।